Hello students, welcome to our club today. I believe you are doing well. आज के कॉल में हम और एक स्टूडेंट के क्वेश्चन लेंगे and we would study the question and the difficulties of the students in learning English. अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया में कौन सी गलतियां और कौन से सवाल और कौन सी डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ रहा है इन स्टूडेंट्स का सुनेंगे. And then we would analyze their issues and offer them some helpful tips. इसीलिए stay with us till the end of the video. Perhaps you may get answers to some of your own spoken English problems. Let's begin. Here comes. Hello. Hello, sir. I'm Chandan from Odisha. Hello, Chandan. Thank you for calling ASL English Club. How may I help you? Sir, I really wanted to improve my English speaking, Okay. but I do not get opportunity to speak in English. I There see. is no place for me to practice my English. Okay. When I try speaking with my friends, they make fun of me saying I'm becoming an English. Okay. So I know grammar, but when I speak, I develop a mistake in my pronunciation. Okay. I feel shy and nervous to speak English. Okay. Please help me, sir. Okay. Let's analyze your problem and see what's the best possible solution. Thank you. हमने चंदन के बारे में क्या सीखा? Number one, he is really passionate to learn English. Number two, he does not get opportunity to speak English. Number three, he said there is no place for him to practice English. उसने कहा जब मैं अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करता हूं, they make fun of me, saying I am becoming an अंग्रेज. उसने ये भी कहा कि he knows a lot of grammar, but when he speaks, he has no confidence. He also said he feels shy and nervous to speak English. उसने कहा he needs help. Does he sound familiar to many of you? I want to share चंदन कौन सी गलती अपने सोच में, अपने विचार में और अपने कार्य में कर रहे हैं. And then मैं आपको ऐसे कुछ सजेशन आपके सामने रखूंगा ताकि you would avoid those mistakes and stop making them. तो वापस आइए चंदन की ओर. सबसे पहली बात, he really wants to improve his English. He is passionate. He has a deep conviction. लेकिन जैसे थॉमस कार्लाइल ने कहा कि the conviction is worthless unless it is converted to action or conduct. जब तक conviction को action में ना बदल लिया जाए, वो conviction बेकार होता है. चंदन ने कहा कि he does not get opportunity to speak English. मेरे पास अंग्रेजी बोलने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहता. फ्रेंड्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम के एक महान लेखक ने एक बार यूं कहा, डोंट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट. प्रियो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने यूं कहा कि अपॉर्चुनिटीज का इंतजार ना करिए, उसे आप खुद क्रिएट करिए. हम लोग अपॉर्चुनिटी का तो वेट करते ही रहते हैं, बट द क्वेश्चन इज, डज द अपॉर्चुनिटी एवर कम? क्या सच में अपॉर्चुनिटीज आते हैं? Well, sometimes it does, and sometimes it does not. कभी कभी का अपॉर्चुनिटीज आते हैं और कभी कभी का अपॉर्चुनिटीज आते ही नहीं. Many of us wait passively for something to happen, and when nothing happens, we become unhappy and disappointed. बहुत से लोग सक्सेस के सपने तो देखते हैं, but very few people wake up and work hard to achieve that dream. So, Chandan, don't only dream for better English. Wake up, work hard at it, and you will achieve. That's my promise. So, you can create opportunities. Don't wait for it. कभी कभी तो create करने की भी जरूरत नहीं है, but becoming aware of those opportunities around us is very important.
कभी कभी हमारे पास हमेशा रहते हैं, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, बट वी डोंट रिकॉग्नाइज देम. Seeing them and recognizing those opportunities require a change of mindset. जब दिमाग नहीं बदलेगा, अपॉर्चुनिटीज को हम देख नहीं पाएंगे. So when you want something very strongly and you focus on it, things start happening. जब हमें स्ट्रांगली किसी चीज की जरूरत महसूस होता है, हम फोकस करते हैं. So I would give you some tips as to how to create opportunities or how to recognize them. सबसे पहली बात तो आप क्या चाहते हो उसको डिफाइन कर लें. एक गोल को सेट कर लें, एक टारगेट को बना लें कि मुझे यहां तक पहुंचना है. When you know what you want, you will recognize the opportunities for sure. इसलिए सबसे पहले अपने टारगेट को तय करिए, कहां तक आपको पहुंचना होगा. फिर अपने गोल को विजुअलाइज करिए as though you have already accomplished it. ऐसी कल्पना करिए कि मानो आपने अपने टारगेट को हासिल कर लिया. फील इट, एंजॉय इट. जब आपके पास एक मोटिवेशन होता है, एनर्जी एंड एंथुसियाज्म होते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली दिखेंगी जो पहले आपने कभी ना देखा था होगा. आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी. सो चंदन ने कहा कि ही हैज नो वन टू प्रैक्टिस इंग्लिश विथ. क्या वो सच है? That's not true. Do you know that you are never alone? There is someone that lives with you 24/7. Who is that? Huh? Of course, God. But beside God, it's you yourself. And that's why here are some tips that I would like to give to you to create opportunities to be able to speak. सबसे पहले, stand before a mirror. एक आईने के सामने खड़े हो जाइए और बोलना शुरू कर दीजिए. After all, the friend in the mirror that copies you in everything will not criticize you or make fun of you when you make mistake or will not mock at you. It helps you a lot, especially if you are an introvert. यदि आप इंट्रोवर्ट हैं तो यह काफी मदद करता है स्पीकिंग अगर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, टू गेन कॉन्फिडेंस. इसलिए सबसे पहले आप एक मिरर के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं. पर आप बोलेंगे कि मैं बोलूं क्या? What do I speak? Well, हमारे पहले वीडियो में हमने आपको कहा था कि स्पीकिंग comes second, but listening comes first. याद है, जो डिपॉजिट करते हैं उसको ही विड्रॉ कर पाएंगे. इसलिए इससे पहले कि आप मिरर के सामने खड़े हों, आपने ऑलरेडी कुछ अंग्रेजी में सुना है. And whatever you have gleaned, you pick that topic and do that conversation. Try to recollect some of those sentences and just speak in front of your mirror. So looking at your own face. The second thing, when you watch a movie or news or games, आप पॉज कर लीजिए and mimic करने की कोशिश करिए. एक दो sentences को आप रिपीट करके देखिए. बाद में हम और एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप टीवी या न्यूज या गेम्स या मूवीज का यूज कर सकते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए. सो ये सेकंड तरीका रहा आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए. पहला वन क्या था? मिरर के सामने खड़े होकर. सेकंड वन, पुटिंग ऑफ और पॉजिंग योर वीडियोस और मूवीज और गेम्स और न्यूज. द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज अपने परिवार में ढूंढिए. फाइंड एंड रेज अ स्पीकिंग पार्टनर विद इन द फैमिली. कभी कभी शायद आपके भाई या आपके बहन या आपके ब्रदर या आपके सिस्टर या मदर या फादर या सन या डॉटर या अंकल एंट्स, कोई भी आपके परिवार में यदि आपसे थोड़े से ज्यादा अंग्रेजी जानते हो, दे कैन बी योर पार्टनर्स इन स्पीकिंग इंग्लिश. कुछ गाइडलाइन सेट कर लीजिएगा. जैसे हमें हर रोज 15 मिनट देना होगा, जैसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे क्योंकि हम शेयर करने वाले हैं, ओनली अंग्रेजी में बात करेंगे, गलती हो तो मिस्टेक का मजाक नहीं उड़ाएंगे. एंड सो बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन इन प्रैक्टिसिंग दोस. आप कहेंगे वेल मेरे पास ऐसे कोई नहीं है जो मेरे इतना बोलता नहीं, मेरे उतना समझता हो. डोंट वरी, इट्स नॉट जस्ट फॉर करेक्शन.
आप जो भी सुन रहे हैं उसको प्रोसेस करके आपके मुंह से निकालने के लिए कोई आपको सुने, उसके लिए आपको एक पार्टनर की जरूरत होती है। एंड दैट्स व्हाई इन दैट केस डेफिनेटली आपके परिवार में कोई भी आपको मदद कर सकता है यदि वो थोड़े बहुत अंग्रेजी जानते हैं। लेकिन यदि आप कहें नहीं मेरे परिवार में कोई भी नहीं, डोंट वरी। द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज फाइंड एन एक्सचेंज पार्टनर, यानी कि आप उसे कुछ देंगे और वो आपको लैंग्वेज देगा। Someone who is better in English than you, and you are good in something that person is not. For an example, मैं किसी को भी अंग्रेजी सिखा सकता हूं, लेकिन मुझे एक वेबसाइट डिजाइन करने में मदद की जरूरत है, या वीडियो एडिटिंग करने में मदद की जरूरत है, या मेरे कंप्यूटर्स में जो इश्यूज होते हैं उसका जो सॉल्यूशन में मुझे मदद की जरूरत है। So in that case, I can become a partner with somebody. तो ऐसे ही जैसे आपको किसी की तलाश है जो आपको लैंग्वेज में आपको मदद कर सके, उसी प्रकार आपके अंदर ऐसी कुछ खूबी है जिसकी और किसी की जरूरत है आपके फ्रेंड सर्कल में, आप उन्हें उस चीज में मदद करिए और उनको कहिए प्लीज हेल्प मी विद लैंग्वेज। आप लैंग्वेज पार्टनर्स ऐसे बन सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई चाहता है मेरा भी कुछ फायदा हो, इसीलिए बहुत कम लोग आपको मिलते हैं जो कहें कि मैं अंग्रेजी सबको फ्री में सिखा दूंगा। यदि ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे विन विन सिचुएशन होगा, यू गेव समथिंग एंड दैट पर्सन गेव यू समथिंग ऑल्सो। तो ये रहा आपका चौथा स्टेप जो आप कर सकते हैं। पांचवें स्टेप में मैं आपको बोलूंगा आप अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर एक लैंग्वेज क्लब को क्रिएट करें। आपके फोन में कम से कम 100, 200, 300 नंबर्स तो होंगे ही, उनमें से क्या 5 लोग भी ऐसे नहीं निकलेंगे जो सच में अपने करियर को और अपने लैंग्वेज को डेवलप करना चाहते हो? यदि ऐसे फ्रेंड्स आपके लिस्ट में नहीं है तो शायद आपको ऐसे फ्रेंड्स बढ़ाना पड़ेगा जो करियर को लेकर एंबिशियस हो। वो एक बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होगा। शायद आपके फ्रेंड सर्कल्स में ऐसे ऑलरेडी हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं। आप जब खोल लेंगे, आप व्हेन यू बिकम ओपन अबाउट योर डिजायर टू लर्न इंग्लिश, बहुत से ऐसे निकल कर आएंगे। और आजकल टेक्नोलॉजी इतना इजी है, या व्हाट्सएप है या फोन कॉल्स है, जिसके जरिए आप आराम से हर रोज कन्वर्सेशन कर सकते हो उनके साथ। इसीलिए आप कोशिश करिए फॉर एग्जाम्पल ए व्हाट्सएप ग्रुप बना के, बट आप गाइडलाइन पहले से सेट करके रखिएगा, नहीं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और जोक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप भर जाएगा और बहुत जल्दी ही सबके सब डिस्करेज हो जाएंगे। कोशिश करिए नंबर को बहुत कम रखने का, मैक्सिमम 5 से लेकर 10 नंबर मैक्सिमम रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। एंड देन डिसाइड करिए एक दिन आप कितने मिनट आप कन्वर्सेशन करेंगे। आपको लगेगा मेरे फ्रेंड्स में कोई भी उतना हाई स्टैंडर्ड का नहीं है जो मुझे सिखा सके या मेरा करेक्शन कर सके। डोंट वरी अबाउट करेक्शन, डोंट वरी अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स फॉर नाउ, क्योंकि आप सुनने के द्वारा नई चीजों को सीख रहे हैं। ओनली प्रैक्टिस के लिए आप ये कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई यू कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा गाइडलाइन सेट कर लीजिएगा, लाइक नो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैसेजेस होगा, फॉरवर्डेड मैसेज कुछ भी नहीं होगा, इट विल बी प्योरली फॉर स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिसेस होगा। आप डेट फिक्स करेंगे, टाइम फिक्स करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे कि आज के इतने बजे हम सब मिलेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे, एंड देन इट विल बी प्योरली फॉर इंग्लिश लर्निंग पर्पस। एंड फाइनली 6th वन में आप आजकल बहुत से स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिसेस ऐप आते हैं। यू कैन प्रैक्टिस विद स्ट्रेंजर्स जिनको आप नहीं जानते हैं, but be careful, there are some apps very safe and there are some apps which are not safe. So आप यदि गूगल करेंगे या प्ले स्टोर में जाएंगे, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिसेस ऐप आपको बहुत से मिल जाएंगे। That's another option that you can practice, but it's always good to talk to somebody who knows you for a lengthy conversation. ये सारे प्रक्रियाओं में कुछ ना कुछ फायदे हैं और कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। No solution is perfect. लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इनमें से जो भी आपको बेस्ट लगता है उसका उपयोग कर लीजिए। सो कम रिपीट विथ मी। द फर्स्ट वन, स्टैंड बिफोर ए मिरर एंड स्पीक टू योरसेल्फ विथ कॉन्फिडेंस। नंबर 2, लिसन टू मूवीज और न्यूज और गेम्स। स्टॉप और पॉज द वीडियो एंड मिमिक इट। नंबर 3, फाइंड एंड रेज सम स्पीकिंग पार्टनर्स विद इन द फैमिली। आपके सिबलिंग्स में या फादर, मदर और अंकल, एंट से कोई भी हो सकते हैं।
नंबर 4, एक एक्सचेंज पार्टनर ढूंढिए जिनको आप कुछ दे सकें और वो आपको अंग्रेजी सिखा सके। नंबर 5, आप खुद का एक लैंग्वेज क्लब बना सकते हैं 5 से 10 लोगों के फ्रेंड्स का जो मोटिवेटेड है अंग्रेजी सीखने के लिए आपके जैसे, वे आपस में जो वे खुद कुछ ना कुछ सुनकर आएंगे और उसको अब आपके सामने प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही आप भी सुन करके प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज नॉट करेक्शन टाइम, टीचिंग टाइम, इट्स जस्ट प्रैक्टिसिंग टाइम दैट समबडी वुड लिसन टू यू एंड आस्क क्वेश्चंस। फाइनली, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिसेस के एप्स हैं, उन एप्स को ढूंढिए एंड व्हिच एवर इज बेस्ट फॉर यू, मेक यूज ऑफ देम। देख लिया ना फ्रेंड्स, चंदन, you were saying that you have no opportunity. You can create the opportunity for yourself, and I challenge you, it's going to work better. Stay tuned, write in our comment box which idea of these is working good for you so that others may benefit out of it also. God bless you. Thank you.